Okay, we are doing question number 9. We are doing question number 9. Sale price of a TV is 658 pound. If the cost price was 480 pound, calculate the profit as a percentage of cost price. So we have to find the percentage profit. So first we find the profit. How much is the profit? Sale price minus the cost price. That will be the profit. And the loss will be cost price minus the sale price. 658 minus 480, 20, 178, I think. Yes, sir. 178 is the profit. Now we will find the profit percentage. We will find the profit percentage. Komal. Sundas. Now we'll find the profit percentage of the cost price. So this is the profit. We have to find the profit percentage of profit 780. This is the profit on the cost price 480 into 100%. When we are finding percentage, so we multiply with the 100%. The fraction, the profit, we have to find the profit percentage. The profit divided by the cost price, profit of the cost price. So of the cost price multiplied by 100%. So find the answer. What is the answer? And give the answer up to 3 decimal place. Rice. Sir, is it 37.083? 37 point. 37.083. 37.083, isn't it? G. Okay. Thank you. So this is the profit percentage. Question number 10. A retailer sells a video recorder for 880 pound. The price includes VAT. This also includes VAT at 21% and a profit of 34%. It also includes a profit of 34%. Calculate the cost price of the recorder. Calculate the cost price of the recorder. So this price is included 21% VAT and a profit of 34%. Calculate the cost price. So first we find the sale price. When the VAT is 21%, that is included 21 VAT. We will find without VAT. We will find the price without VAT. Then we find the cost price. Question number 10.
सेल प्राइस विद VAT. This is 880 pound. So you'll find the tag price. That means without VAT. So sale price without VAT. First we find the sale price without VAT. We will find the price without VAT. So VAT rate is 21%. VAT rate 21%. Now again, let us suppose price without VAT. $100 and price with VAT. It is 21%, so it will become 121. 100% है तो 100 पर जो है 21% VAT ऐड कर दे हो जाएगा तो 121% में वो बेचेगा. So now we will find sale price without VAT. Sale price, therefore सेल प्राइस या तो सपोज थी, ये क्या थी हमारी, सपोज थी, एक्चुअल नहीं थी. एक्चुअल हम अब फाइंड आउट कर रहे हैं. सेल प्राइस विदाउट VAT. विदाउट VAT, तो विदाउट VAT 100 अपॉन 121 मल्टीप्लाइड बाय 880. हमने विदाउट VAT निकालना, तो विदाउट VAT हमने सपोज किया 100 अपॉन विद VAT 121 मल्टीप्लाइड बाय विद VAT 880. इसको कैलकुलेट कर ले, ये हमारे पास टैग प्राइस आ जाएगी. ये क्या आ जाएगी, टैग प्राइस, यानी वो प्राइस जो उस पे प्रिंटेड थी, जो टैग लगा हुआ था उस पे. कैलकुलेट कर ले बेटा, इसको बता दे मुझे कितना हुआ. 727. 727. ये इसकी टैग प्राइस आ गई, यानी एक्चुअल सेल प्राइस, और उस पे फिर VAT लगा तो 880 बनी. अब ये उसकी सेल प्राइस थी जो उसने मुकर्रर की थी शॉपकीपर ने. ये कौन है, उमर मोहसिन. ओके, ये वो प्राइस है जो शॉपकीपर ने इस पर लिखी थी, और उस पर फिर VAT लगाकर इतने में उसने उसको दिया था. तो अब हम इस पर उसने वो कितना ले रहा है, 34% प्रॉफिट भी ले रहा है वो. तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है. प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 34%. प्रॉफिट रेट, तो एक्चुअल शॉपकीपर की सेल प्राइस तो यही है, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स है बाकी मिला के. तो एक्चुअल शॉपकीपर की सेल प्राइस तो यही है, तो इस प्राइस पे दे रहा है, वो चीज बेच रहा है, और उस पे वो प्रॉफिट ले रहा है 34%. प्रॉफिट रेट है 34%. तो अगर कॉस्ट उसकी 100 है तो वो कितने में बेचेगा, 34% प्रॉफिट लेकर 134 में बेच देगा. लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस उसकी 100 थी,
लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी? 34% उसमें ऐड कर देगा, 134. 134, बिल्कुल सही है, 134 उसकी प्राइस हो जाएगी। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस उसकी ये है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमने सपोज क्या की थी? 100 अपॉन 134 सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस 727, सॉरी। इसको बताएं भाई कितना हो गया मुस्तफा? कितना हो गया बेटा ये? Sir, 542. 542 pounds, this is the cost price। अभी देखिए इतने में कॉस्ट प्राइस थी, उसने 34% प्रॉफिट लिया, तो उसने ये कीमत मुकर्रर की उसकी 727। फिर इस पर वीएटी लगा, तो कस्टमर को 880 में तकरीबन पड़ी जाकर, कस्टमर को 880 में जाकर ये पड़ी है, उसने उसको इतने में उसने खरीदी है, जब किसी कॉस्ट प्राइस 542 थी। फिर उसने अपना मार्जिन लगाया, 34% का प्रॉफिट रखा, तो उसने 727 उसकी प्राइस मुकर्रर की, और उस पर फिर जो बिकी है वो 880 में बिकी है। तो इस तरह हम इनको करते हैं। तो पहले अगर हमें सेल प्राइस दी गई है, तो सेल प्राइस में जो है और उसका प्रॉफिट 34%, हम सपोज कर लेंगे कॉस्ट निकालनी है, तो सपोज कर लेंगे कॉस्ट 100 है, तो प्रॉफिट उसने 34% लिया, तो बेचेगा 134 में। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट हमारी 100 थी, कॉस्ट लिखी, कॉस्ट फाइंड आउट करनी, तो कॉस्ट लिखी, कॉस्ट अपॉन सेल मल्टीप्लाइड बाय द सेल प्राइस। जो फाइंड आउट करना है, हमने कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट ऊपर लिख देंगे, अपॉन वो दूसरी वैल्यू जो सपोज की थी। यहाँ हमने क्या था, विदाउट वीएटी हमने निकालनी है प्राइस, तो हमने सपोज किया था प्राइस विदाउट वीएटी इज 100 है और विद वीएटी 121 है, तो हमने विदाउट वीएटी निकालना, तो विदाउट वीएटी वाली 100 ऊपर रखी और 121 नीचे लिखी, और ये विद वीएटी है 121, और ये विद वीएटी था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। किसका? हारिस कौन? अच्छा फरूक, अच्छा इन्ना लिल्लाह है 5 बजे। अच्छा, चलिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है 100 अपॉन 134 इंटू 727, ये हमने निकालनी है। जो चीज फाइंड आउट करनी है, जो हमने सपोज किए, वो उसको ऊपर लिखेंगे, दूसरी हम नीचे रखेंगे। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखना है और दूसरी को नीचे लिखना है। और एक्चुअल से ये दूसरी जो है ये सेल प्राइस थी, तो एक्चुअल सेल प्राइस हमने निकाली थी, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका ये प्राइस विद वीएटी थी, और हमने इसमें भी विदाउट वीएटी ले रहे, तो विदाउट वीएटी 100 हमने सपोज किया था, और विद वीएटी 121 था, तो विद वीएटी वाली से इसको फिर एक्चुअल विद वीएटी वाली से मल्टीप्लाई कर देना था। तो हमारे पास विदाउट वीएटी है, विदाउट वीएटी 100 था, वो ऊपर लिखा, और उसका अब सपोज जो था विद वीएटी 121 लिखा, उसको विद वीएटी वाले एक्चुअल वीएटी वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द वे हाउ टू डू। Question number 11. A retailers buy TVs for 425 pound. He must then pay VAT at 21%. Then, यानी उसके बाद उसको पे करना है VAT 21%. What price should he charge if he is to make a profit of 25% of the cost price?
तो वो 1% 25% उसमें प्रॉफिट भी ले रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ना रिटेलर बाइज टीवीज फॉर 425 पाउंड्स, तो 425 पाउंड पे वो बाई कर रहा है। उसी तरह ये क्वेश्चन है जैसे इसमें था ये विदाउट वीएटी वाला ये क्वेश्चन था, इतना ये इतना पे वो बाई कर रहा है। He must then pay VAT 21%. What price should he charge if he is make a profit of 25% of the cost price? So he is buying price, question number 11. सर जी बेटा कहिए। इससे जो आपने भी क्वेश्चन नंबर 10 करवाया है, जी कहिए। हाँ सर बेटा क्वेश्चन बोलो। नंबर 10 जो आपने अभी करवाया है, जी आगे बोलो ना। सर इसका आंसर बुक के पीछे चेंज आ रहा है। किसमें? क्या आ रहा है? Question number 11. A retailer buys TV for 425 pound. So buying price. फिर उस पर वो 21% VAT दे रहा है। He must then pay VAT at 21%. So VAT rate 21%. सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर लें। अच्छा बेटा। VAT rate 21%. तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? सपोज बाइंग प्राइस इज 100, buying price is 100 and the cost will be, cost में VAT include कर देंगे। Let us suppose cost price will be equal to 21% इसमें include किया 121 हो गई। अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी? एक्चुअल कॉस्ट। Therefore cost will be equal to कॉस्ट जो हमने सपोज की थी 121 डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस जो सपोज की थी और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल बाइंग प्राइस 425। तो कितना आंसर आ गया भाई? वन 121 इंटू 420 जी 514। 514। ये हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इस पर वो ले रहा है प्रॉफिट 25%, तो कितने में बेचेगा? What price should he charge if he is to make a profit of 25% of the cost price? ये कॉस्ट प्राइस आई है, इस पर 25% प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट रेट 25%। इसका मतलब ये हुआ अगर वो कॉस्ट प्राइस उसकी 100 होती है, सपोज कर लेते, लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 25% प्रॉफिट लेकर
माहीन सैयद। ओके, प्रॉफिट रेट इतना हो गया। लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, कॉस्ट प्राइस इज 100, इस पर 25% प्रॉफिट लेता है, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी उसकी? 125, 125 हो जाएगी, तो हमने सेल प्राइस ही निकाल ली है। देयरफॉर सेल प्राइस इज इक्वल टू, सेल प्राइस हमारे पास 120, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हमने सेल प्राइस लेनी है 125 अपॉन 100, ये कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 540, 642. 642 इसकी हमारे पास सेल प्राइस आ गई। सो देयरफॉर ही विल चार्ज 642, द रिटेलर विल चार्ज 642। तो ये हमने इसकी सेल प्राइस निकाल ली, ये हमने इसकी सेल प्राइस निकाल ली। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। बाइंग प्राइस हमें दी गई थी और उस पर 21% उसने कहा उसने वीएटी भी देना था, और उसके बाद उसने उस पर 25% प्रॉफिट भी लेना है कॉस्ट पर। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, बाइंग प्राइस का 21% उसका वो चार्ज किया, तो हमने उस पर वो सपोज करके, दूसरा तरीका हम यूं भी कर सकते हैं कि इस पर 21% निकाल लें, फिर वो इसमें ऐड कर दे, तो फिर वो हमारे पास ये आएगा। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 425 मल्टीप्लाइड बाय 21%, 21 अपॉन 100 कर लेंगे, वो हमारे पास वीएटी आ जाएगा। वीएटी इसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 514। उस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह 514 पर 25% पहले प्रॉफिट निकाल लें, 514 मल्टीप्लाइड बाई 25% मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 100, वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को हम इस कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी 642। तो वो फिर डबल पहले उसको निकालो फिर उसमें ऐड करो। हम यहाँ ऐड यहीं पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल रहे हैं। अगर वो पूछता प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट भी बताएं, तो फिर हम इसको 25% से मल्टीप्लाई करके 25 अपॉन 100 से प्रॉफिट निकाल लेते, फिर प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देते कॉस्ट में, तो फिर वो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती। तो ये डायरेक्ट वाला मेथड है, हमने डायरेक्ट निकाली है। क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 154 students attend a math lecture. If 22 students are absent, calculate the percentage of students present. So 154 students attended a math lecture. तो 122 जो है वो अटेंड कर रहे हैं। If 22 students are absent, 22 student absent थे, calculate the percentage of students absent. तो पहले हम टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे, कितने स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द क्लास। 154 प्रेजेंट हैं और 22 एब्सेंट हैं, तो टोटल हम इनको ऐड करके टोटल निकाल लेंगे। जब टोटल आ जाएगा तो हम फिर उसका जो है परसेंटेज निकाल लेंगे स्टूडेंट एब्सेंट। तो टोटल में से 22 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100% कर देंगे, तो ये हमारे पास एब्सेंट परसेंटेज आ जाएगी। कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 12,
Question number 12. Students present. Number of students present. (154). Number of students absent. 22. तो टोटल स्ट्रेंथ क्या आ गई क्लास की? यानी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 176। ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास के हैं 176। यानी 154 प्लस 22 176। इतने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं। हमने एब्सेंट परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो हमें एब्सेंट स्टूडेंट भी पता है कितने हैं और हमें टोटल स्टूडेंट भी पता है, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंटीज, तो ये हो जाएगा एब्सेंट हमारे पास 22 थे, 22 अपॉन 176 मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंटेज निकाल ली हमने, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले भाई, पता चल जाएगा आपको। 12.5 12.5% जो है वो एब्सेंट है। एब्सेंट परसेंटेज का बेटा ये निशान बनाया करें, डॉट डॉट यूं मत बना दिया करें, ये गलत है। डॉट डॉट नहीं होता, ये डॉट डॉट नहीं होता भाई, इसी किस्म का निशान होता है। ये जीरो होते हैं, छोटे 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 ओ बने हुए होते हैं, जीरो बने हुए होते हैं। परसेंटेज क्या डॉट नहीं होता, पता नहीं कहाँ से बच्चे सीख लेते हैं। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना आपको कैलकुलेटर में नजर आएगा इस किस्म का निशान, ना आपको कहीं बुक में नजर आएगा। फिर पता नहीं बच्चों ने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है। 12। सो ये हमारे पास एब्सेंटीज की परसेंटेज आ गई। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता था, 22 गिवन था हमारे पास। टोटल सिर्फ हमने निकाला है, दोनों को ऐड करके टोटल कर लिया, टोटल से डिवाइड किया, फिर 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर प्रेजेंट का निकालना होता तो 154 अपॉन 176 कर लेते, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो वो निकाल लेते 154 अपॉन 176 इंटू 100%, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता। ओके, ये तो हमारा परसेंटेज क्लोज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेट लाइंस। उसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी 2 वीक मिसिंग है, उसका मेकअप क्लास भी हमने अरेंज करनी है। 2 वीक आपके मिसिंग है बाकी क्लासेस से, एक एक करके हम लेंगे। एक वीक में एक क्लास, फिर दूसरे वीक में दूसरी क्लास, ताकि आप दूसरी क्लास के बराबर आ जाए। स्ट्रेट लाइन, इस किस्म की लाइंस यू हो, यू हो, यू हो, यू हो, ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइंस है। ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइंस है। इनकी इक्वेशन जो होती है वो कहलाती है लीनियर इक्वेशंस। ये एक्स और वाई में होंगी, या सिर्फ एक्स में होंगी, या सिर्फ वाई में होंगी, और ये लीनियर इक्वेशंस होंगी। एक्स और वाई की पावर 1 होगी इसमें,
सिर्फ x हो या सिर्फ y हो या दोनों हो, तो लेकिन हर एक की पावर 1 होगी इसमें, तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। जिसमें x और y की पावर 1 हो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशंस। पावर 2 नहीं हो सकती, ना 1.5 होगी, सिर्फ 1। इस किस्म की इक्वेशंस में पावर 1 होती है। तो इस किस्म की इक्वेशंस होती है ये स्ट्रेट लाइन की। इसकी जनरल इक्वेशन मैं आपको बता दूं, जनरल इक्वेशन इसकी होगी ax प्लस by इज इक्वल टू c या माइनस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। a और b की जगह कोई नंबर होंगे, c के भी कोई नंबर होगा, यानी ये इट मे बी 2x प्लस 3y माइनस 4 या प्लस 4 इक्वल टू 0, या x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस किस्म की इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएंगी। खास निशान ये है x और y की पावर 1 होगी। जरूरी नहीं है उसमें दोनों x और y मौजूद हो, बाज़ औक़ात सिर्फ x मौजूद होता है, a 0 हो जाता है या b 0 हो जाता है। जब ये a या b 0 हो जाएगा तो कोई एक इसमें से गायब हो जाएगा। अगर a 0 होगा तो x गायब हो जाएगा, सिर्फ b y रह जाएगा। अगर b 0 होगा तो b y गायब हो जाएगा, 0 इंटू y 0 हो जाएगा, सिर्फ ax में रह जाएगा। बाज़ औक़ात c भी नहीं होता, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक बंद है। ओके, तो बाज़ औक़ात इसमें से a गायब होता है, बाज़ औक़ात इसमें से b गायब होता है, बाज़ औक़ात इसमें c गायब होता है, बाज़ औक़ात सब मौजूद होते हैं। यानी a का कोएफिशिएंट भी मौजूद है, b का y का x का कोएफिशिएंट भी मौजूद है, y का कोएफिशिएंट भी मौजूद है और c भी कांस्टेंट भी मौजूद है। तो ये इस किस्म की ये जनरल इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, वो मुख्तलिफ फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगी और शेप मैंने बता दी किस किस्म की होगी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली जो है वो हम कहलाते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस किस्म की होगी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब मैं बता रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये जनरल फॉर्म थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है y इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कहलाती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, यानी m कोई भी नंबर होगा और c भी कोई भी नंबर होगा। y के साथ सिर्फ 1 आएगा, यहाँ y के साथ कोई a 2 3 4 या 1/2 3/4 नहीं हो सकता, ये सिर्फ 1 होगा y का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। इससे मुराद -2 -3 √4 √5 या 1/2 1/3 या 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, और प्लस c। अब ये m क्या है शो करेगा? जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हर चीज कुछ ना कुछ शो करती है। ओके, तो m इसमें शो कर रहा है स्लोप, ये कहलाता है स्लोप,
और सी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, ये किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? ये अगर लाइन है इस किस्म की, ये एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इस पे एक ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m जो है ये स्लोप कहलाता है, स्लोप से मुराद ये कितना ये इस तरफ झुकाव है इसका, एक्सिस से कितना ये ऊपर उठा हुआ है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है ये लाइन। तो ये एक्स एक्सिस से ये लाइन इस यूं चली गई है, इससे यूं चली गई है, यहाँ से यूं हो गई है, तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ उठ गई है, तो ये स्लोप कहलाएगा, ये m कहलाएगा। कितना ये ऊपर उठी हुई है, ये कितने एंगल है, इस एंगल का टेंजेंट जो है वो स्लोप कहलाता है। एंगल स्लोप नहीं है, एंगल का टेंजेंट जो है वो स्लोप कहलाएगा। tan थीटा आपको पता होगा, एंगल का साइन कॉस tan लिया जाता है, तो ये tan होगा उसका, एंगल का tan, जितना एंगल ये बना रही है एक्स एक्सिस के साथ उस एंगल का tan, वो स्लोप कहलाएगा। तो यानी कि इसका झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। हाउ मच द लाइन इज बीइंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। Or at which point this is intersecting the y axis, this is called the y intercept, ये c होगा। और ये एंगल थीटा है, थीटा का tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। ये एंगल थीटा बना रहा है, तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। m, it is denoted by m, slope is denoted by m, and actual this is the tangent of the angle which is making with the x axis। x axis के साथ ये लाइन जो एंगल बना रही है, उस एंगल का tan अगर हम ले लें वो स्लोप कहलाएगा। और c वो पॉइंट है जहां पर ये y एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, c वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। ये y एक्सिस को यहां पे इंटरसेप्ट करते हैं, ये लाइन u अगर हो तो यहां पे इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है, नेगेटिव y एक्सिस होता है, तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, यू ओरिजिन से पास हो रही है, तो y एक्सिस 0 हो जाएगा, वो y एक्सिस को 0 पर कट कर रही है, यहाँ x भी 0 है ओरिजिन पर, y भी 0 है, तो ये लाइन अगर यूं आ रही है